Hi everyone, I'm Parsa Mufti and I welcome you to a panel discussion on food security during Corona. India's hunger problem is truly a conundrum. After all, India has the largest area of land under cultivation, more than the United States and even China. India is the world's largest producer of milk, pulses, millets, and the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, and groundnuts. Yet millions of Indians are hungry, suffer from malnutrition and other ailments. 36% of children under 5 are underweight, 21% are wasted. 75% of India doesn't get enough food from their food intake. 51% of women of reproductive age have low levels of iron. Yet, instead of resolving this problem resolutely, the NDA government chooses to prioritize other things, such as publicity. Between April 2014 and July 2018, the NDA's publicity budget could have fed 46 million children for a year. Additionally, the NDA chose to link the public distribution system to Aadhaar, despite the Supreme Court's ruling that Aadhaar is not mandatory for welfare schemes. Then, because of its ideological imperatives, it removed eggs from midday meals. And recently, millions of migrants went hungry for weeks on end without any state support. The combined effect of all this has been disastrous for India. In 2019, India dropped to a 102 rank out of 117 countries in the Global Hunger Report. This conundrum of hunger amidst abundance is critical for India. This is why I'm privileged to host Professor Deepa Sinha, who teaches at Ambedkar University, and Sachin Jain ji of the Right to Food campaign. Sachin ji, there have been many reports of exclusions and denials of ration from various states, where Aadhaar has been forcibly linked to the delivery of subsidized food grain. For example, in Rajasthan, since September 2017, an average of 15% NFSA households have not been able to access food grains because of errors in biometric authentication and such. How reliable is Aadhaar technology for food ration, and is this even legal? It's a fact that actually Aadhaar is causing a lot of exclusion in the public distribution system program. And it is restricting a lot of families and individuals to receive ration on a monthly basis. In MP also, we see in a different form, like government says that we have an allocation of around 3 lakh ton per month, but actually the offtake by the beneficiaries is around 2.75 lakh tons. So it means 25,000 ton food grains are not being taken up by the beneficiaries. It is not that beneficiaries are not there. Beneficiaries are there, but because of various exclusions, and Aadhaar is one of the very biggest cause of exclusion, they are not able to actually take their entitlements from the public distribution system. So the problem is actually it is in the context of food and nutrition program, the use of Aadhaar as a mandatory criteria is really a problematic thing. It is not only because that it has authentication problems, but a lot of other technical issues as well. The problem is that Aadhaar has become the biggest eligibility criteria. And we all know that because of manual works, because of the majority of the population is laborer, women work at home, and their fingerprints actually don't respond properly to the technology. So because of all these reasons, for old age people, for laborers, for women, actually Aadhaar is not a good idea at all, because they are not able to testify it when they actually go to the ration shop, and they don't get it authenticated. So that is the one of the biggest problem that we see. The problem is, on the one hand, government is saying that Aadhaar is important for actually eliminating leakages, controlling corruption in the public distribution system, and it will ensure that the subsidies and the allocations actually reaches to the people. But the problem is that why the focus is only on Aadhaar? There are different other provisions in the National Food Security Act for eliminating leakages and controlling corruption. Like social audit provision is there. There's a provision of making vigilance committees. Why actually government is not strengthening vigilance committees? Why these committees are not being constituted? Why social audit mechanism is not being applied? Why independent grievances redressal mechanism is being put in place?
It brings a lot of question on the intent of the policymakers and the government, that it is not only because they want to make a system, make system foolproof, and they want to remove corruption. Actually, they want to remove the beneficiaries from the system. Maximum allocation is the target. So that is one of the biggest reason why actually Aadhaar is a favorite technology or favorite instrument which they are actually taking up from National Food Security Act. But they are choosy on other components, like as I mentioned about social audit, vigilance committees, and independent grievances redressal mechanism. There are different other components for reforms. That there's also a provision of decentralization in public distribution system, local procurement, local purchase, local distribution. Why there is not a single policy step on this particular point? So these things actually show that only the interest in only one point, desperation towards Aadhaar, is actually a matter of intent, and there is no intent for providing more and more benefits to the people, but it is actually complexing system more and more, so that actually a lot of people go out from the public distribution system. Professor Deepa, the year the NDA government took office, it slashed the budget for the midday meal, and it also changed the fund sharing ratio between the center and states from 75-25 to 60-40. How badly has this impacted the 11 crore children dependent on midday meals? So, if you look at the midday meal scheme in general, it was universalized that a hot cooked meal must be provided to all children in school following a Supreme Court order in 2001. And by about 2004-05 is when we had this implemented across the country. And since that time, there have been certain improvements in the scheme in the sense that for a long time it was not inflation indexed. Later, the inflation indexation came. Cooks used to not be paid at all. Some payment for cooks came. So the context of the midday meal when the NDA government came into power was one where the midday meal needed a second generation of reforms. And what I mean by second generation of reforms is improvement in menus by including eggs, by including fruits, for those who don't eat eggs, maybe milk and other kinds of better value foods. And also having reforms where the cooks are paid better, and that it could also be seen as a scheme which became a vehicle to promote local production, to promote local procurement, and to promote women's employment locally. Although this was the stage at which the midday meal was, what we saw is what you exactly mentioned, that the central government's investment in the midday meal actually coming down, with the onus being shifted to the states to continue the program at the level at which it was. So as we know, the state government's finances are not as good as the central government. They don't have as many resource generation opportunities, because of which the midday meal has kind of become flat since then. And we don't see these kind of new things which should have come to improve the nutritional quality of the program being implemented. There has also been the other issue with the coming of the NDA and the BJP governments in many states, that the issue of what is fed in the midday meal also has become unnecessarily political, much more than it was before. So this whole problem of introducing eggs in midday meal has become a big issue, because now there's a political opposition to it as well. Exactly. There is a question that panelists. By May 1, 2020, the government had stocked 878 lakh tons of grain, which was 668 lakh tons in excess of the government stocking norms. And उसके बाद 65 lakh tons rot हो गए FCI गोडाउन्स में. और ये सब तब हो रहा था जब लाखों माइग्रेंट्स सड़क पे थे घर जाने के लिए और भूखे थे. एनडीए गवर्नमेंट ने ये फूड ग्रेन क्यों इस्तेमाल नहीं किया? मैं आप दोनों से ये सवाल पूछती हूँ. सचिन जी, स्टार्टिंग विद यू. इसमें बहुत मुझे जो चीज समझ में आती है, सबसे पहला तो ये है कि खासतौर पर ये जो कॉन्टेक्स्ट है कोविड पैंडेमिक का, इसने बहुत मेजर एक तरीके का प्रूफ दिया है, एक प्रमाण दिया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और हमारा जो पूरा फूड पॉलिसी है, जिसमें हम पूरा एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी करते हैं, उसका सरकारी ढांचे में भंडारण होता है, और फिर उसके बाद जिस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए,
अपने आप में ये जो पूरा सिस्टम है, इसने वास्तव में हमको कोविड की जो पेंडेमिक है उससे लड़ने में मदद की है। आप कल्पना करके देखिए, और मैं ये पिछले कई दिनों से मैं लगातार इसके बारे में जब सोचता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे गोदामों में ये 8-9 करोड़ टन अनाज नहीं होता, अगर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन का चेन नहीं होता, हमारे पास अगर ये पूरा जो पीडीएस का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, अगर वो नहीं होता, तो क्या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कुछ मिनटों में लॉकडाउन की घोषणा कर देना, या एक तरीके से जो पूरा कोविड का प्रोटोकॉल जिस तरीके से अप्लाई किया गया, क्या ये वास्तव में कर पाना संभव था? तो अपने आप में ये जो पूरी बात समझ में आती है कि एक तो बड़े स्केल पर पीडीएस जो है उसने बहुत मेजर सपोर्टिव रोल प्ले किया है हमको इस पूरे कोविड पेंडेमिक से निपटने में। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब हम इस बात पे आते हैं कि सरकार ने ये तय किया था कि जो एक तरीके लोगों को और माइग्रेंट लेबर्स को जो उसका स्टॉक है उसमें से अनाज दिया जाएगा, और उसमें दोनों तरीके के प्रोविजन किए जा रहे थे कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनको भी फ्री राशन मिलेगा, और जो लोग एनरोल्ड नहीं हैं उनको भी फ्री राशन दिया जाएगा। तो जो एनरोल्ड हैं वो एक हद तक तो वो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जब हम इस लेवल पर आते हैं कि जो नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको राशन नहीं मिल पाया, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास एक पूरा का पूरा सिस्टम इन प्लेस नहीं है। उसमें भी सरकार ने जो है वो आधार को अप्लाई किया है। मैं आपको तमाम राज्यों के उदाहरण दे सकता हूं, मध्य प्रदेश उसमें से एक है जहां पर नॉन राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भी ये मैंडेटरी था कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं तो ही आपको राशन मिल सकता है। तो जितना आप एक तरीके से प्रोविजन कर रहे हैं वो प्रोविजन एक बड़े नंबर के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर आप एक छोटे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितने लोगों को आपने प्लान किया है उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा एक्सक्लूजन आधार के कारण हो पा रहा है। तो पहली बात यह है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि जिस वक्त दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स के ऊपर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जाता है कि अब हम मुफ्त राशन बांटेंगे, या सरकार एक घोषणा करती है, उस घोषणा को राशन की दुकान तक पहुंचने में 46 दिन एवरेज लगा है। अलग अलग राज्यों में आप उठा करके देख लीजिए कि जिस दिन घोषणा की जाती है उसके कितने दिन बाद वो घोषणा जो है वो कम्युनिटी लेवल पर या राशन शॉप के लेवल पर एक्चुअली इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देती है। ये तब इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रही है जब आपका लॉकडाउन खत्म होने की प्रोसेस शुरू हो रही है, जब आपके दूसरे और मैकेनिज्म अप्लाई होना शुरू हो रहे हैं। तो इसका एक बड़ा रीजन ये होता है कि जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है, जो राजनीतिक वक्तव्य है, उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट होने में एक बहुत लंबा समय जो लग रहा है, उसके कारण से जो आपने एलोकेट किया था, जो आपने प्रोविजन किया था, वो उस तरीके से इंप्लीमेंट होकर के लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ये एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमको दिखाई देता है। तीसरी बात ये दिखाई देती है इसमें क्लियर नॉर्म्स नहीं रहे कि किसको दिया जाना है। तो अपने आप में, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, यहां पर सीधे से ये बात कर दी गई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय कर लेगी किसको दिया जाना है। तो अपने आप में जब हम मैदानी स्तर पर देखते हैं, जब हम ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि जिनको जरूरत थी उनको वास्तव में अनाज नहीं मिल पाया है। इसके कारण से भी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चूंकि इस दौरान बहुत मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, प्रॉपर तरीके से उस चीज को अप्लाई करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए था वो इन प्लेस नहीं था, तो उसके कारण भी जो है वो लोगों तक अनाज भी नहीं पहुंचा। और शायद मुझे लगता है कि जितना रोटेट हुआ है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है, उसमें से भी बड़ा अमाउंट जो है वो वास्तव में लोगों तक नहीं पहुंचा। उसमें मैम, वुड यू लाइक टू ऐड? एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे जो सारे चीजें सचिन जी ने कहा, ये सब पीडीएस के इम्प्लीमेंटेशन में बड़े सवाल हैं जो हमारे सामने रहते हैं। इसके साथ साथ जो ये मुद्दा है कि इतने टन अनाज गोदामों में है, पर सरकार फिर भी ऐसा क्यों है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें हमें अपना आज के समय का आर्थिक राजनीति को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि गोदामों में अनाज तो पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही पीडीएस के द्वारा ये गरीबों को दिया जाएगा कम दाम में, तब बजट में ये सब्सिडी के रूप में दिखेगा। तो जब तक ये बांटेंगे नहीं, तब तक वो सब्सिडी के रूप में नहीं दिखता है। तो अनाज सड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, फिस्कल डेफिसिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही सरकार इसको सब्सिडी के रूप में देती है पीडीएस में, तो ये फिस्कल डेफिसिट पे भी असर पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वो लोग फिस्कल डेफिसिट एक इंडिकेटर है जिसको फॉलो करते हैं कि अगर वो बढ़ जाता है
4% से ज्यादा तो स्टॉक मार्केट गिरने का डर वगैरह रहता है, और ये एक बड़ा कारण है कि स्टॉक्स हैं फिर भी बांट नहीं रहे। That's a very interesting. Sachin ji, cash transfers have also been listed as one of the possible PDS reforms in NFSA. बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैकिंग है बहुत रीजन्स में, एंड कैश ट्रांसफर्स आर नॉट लिंक्ड टू प्राइस इंडेक्सेशन. तो कितना फीजिबल है कैश ट्रांसफर्स, एंड क्या वो वल्नरेबल ग्रुप्स को अफेक्ट नहीं करेगा एडवर्सली? मुझे लगता है कि जो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं उसमें कैश ट्रांसफर या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है, और इसके कारण से ये 99% संभावना या आशंका नजर आती है कि वास्तव में भारत में उसके कारण से खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की स्थिति और ज्यादा गंभीर होगी. उसके कई अलग अलग कारण निकल के आते हैं और इसके ऊपर तमाम अध्ययन हो रहे हैं. जो भी पहले पायलट्स हुए हैं, चाहे वो पौंडीचेरी में हुआ हो, चंडीगढ़ में हुआ हो, अलग अलग जगहों पर जो पायलट्स हुए हैं उसमें भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जो अनाज को कैश ट्रांसफर से रिप्लेस करने के कारण से वास्तव में जो पर्पस है वो पर्पस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. ये पहली बात है. दूसरी बात ये है कि पहला आर्ग्यूमेंट तो हमको ये दिखता है कि जैसे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है और हम लगातार इसको देख रहे हैं कि सरकार बार बार ये आर्ग्यूमेंट देती है कि कैश ट्रांसफर देने से लोगों के पास चॉइस आएगा. तो जो सबसे पहली बात ये आती है कि चॉइस सरकार अपने प्रोग्राम के अंदर क्यों नहीं देना चाहती, वो उस प्रोग्राम के बाहर चॉइस क्यों देना चाहती है, चाहे वो फूड डाइवर्सिटी को लेकर के हो या अलग अलग तरीके के कंजम्पशन पैटर्न्स को प्रमोट करने के लिए डीबीटी के फायदे की बात हो. इसको कहीं ना कहीं बार बार आर्ग्यूमेंट में दिया जाता है. तो हमको लगता है कि सबसे पहली जरूरत तो ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील और आईसीडीएस में ही फूड डाइवर्सिटी को लाया जाना चाहिए और उसको डीबीटी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए. दूसरी बात जो डीबीटी के साथ बार बार एक जो बड़ा सवाल आता है कि क्या हमारा उतना बैंकिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. अगर मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण से बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो है वो लगभग 7,800 बैंकिंग ब्रांचेस हैं, जिसमें से केवल 1/3 यानी कि 2,600 ही जो है वो रूरल एरियाज में है. सो वी हैव लाइक 2,600 ब्रांचेस फॉर 55,000 विलेजेस, तो और जबकि 26,000 राशन शॉप्स हैं. तो यानी कि हर एक तरीके से 2 गांव के ऊपर एक राशन शॉप है, लेकिन 20 गांव के ऊपर एक बैंक की ब्रांच है. तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में लोगों का जो डिस्टेंस है बैंक के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हमको दिखाई देती है कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है. ये एक बात है. दूसरा जो पिछले दिनों एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है ये पूरा बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल का, कि छोटे छोटे स्तर पर कियोस्क और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स किए जाएंगे ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप सपोर्ट किया जा सके या उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके. लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें से लगभग हर चीज के लिए कॉस्ट है, हर चीज का एक प्राइस है जिसको उनको पे करना होगा. उसके बाद ही उनको वो अपनी पासबुक अपडेट कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों के कॉस्ट है. तो जिन लोगों के लिए हम ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहे हैं, खासतौर पर जो सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, अपने आप में क्या उनकी सब्सिडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केवल उन्हीं बैंकिंग नॉर्म्स को पूरा करने में नहीं चला जाएगा, ये वाली बात भी आ रही. तो एक्सेस एक बहुत बड़ा इशू है कि अभी लोगों के लिए जो फूड सिक्योरिटी का सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है वो पीडीएस शॉप है, लेकिन डीबीटी के आने के बाद उनको लगभग 20 किलोमीटर दूर मार्केट के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा और वहां से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा. तो एक्सेस एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. और इन सबसे बड़ा एक बड़ा चैलेंज है जो हमारे सोसाइटी के जो इंटरनल जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कि जो कैश आएगा वो कैश का इस्तेमाल कौन करेगा. परिवार के अंदर उसका कैश का जो हमारे यहाँ पूरा पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ जिस तरीके से जेंडर डिवाइड है, जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हैं, उसमें ये बहुत साफ बात है कि अगर मान लीजिए 200 रुपए भी अगर उस सब्सिडी के आते हैं या 500 रुपए सब्सिडी के आते हैं, तो ये कैसे हम इंश्योर करेंगे कि वो फूड सिक्योरिटी के लिए उसका यूटिलाइजेशन होगा. ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इसके चलते जो हमारा पर्पस है पीडीएस का, वो पर्पस हम शायद रिसीव नहीं कर पाएंगे. वो एक बहुत बड़ा सवाल उसके साथ आता है. फिर दूसरा जो उसके साथ चुनौती आती है कि जिस तरीके से मार्केट का पेनिट्रेशन बढ़ा है और जिस तरीके से पैकेज्ड फूड बढ़ा है, आप गांव में अगर जाएंगे तो आपको 1 रुपए का जो है वो पैकेट मिलेगा, दूसरे 2 रुपए का आपको एक पैकेज फूड मिलेगा, जो बच्चों को और कई लेवल पर यूथ को भी अट्रैक्ट करता है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरीके के
जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस न्यूट्रिशन कंजम्पशन के नजरिए से हम बात करते हैं, इस तरीके के जो पैकेज फूड को हम प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, शायद उसको प्रमोट करने के लिए हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे डीबीटी के जरिए, क्योंकि वो मार्केट का पेनिट्रेशन बहुत उसके आगे जाता है। लास्ट पॉइंट जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है कि पीडीएस को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। पीडीएस जो है वो एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट होता है, तो इससे किसानों को भी मदद मिलती है। एक बहुत बड़ा जो प्रोड्यूसर्स का जो ग्रुप है, उत्पादक हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है क्योंकि सरकार वो प्रोक्योर करती है। अगर हम डीबीटी में जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रोक्योरमेंट के ऊपर इसका एक नकारात्मक असर पड़ेगा और किसानों से खरीदी कम होगी। तो जो दीपा ने अभी कहा सब्सिडी वाला, जो एक तरीके से ग्लोबल प्रेशर्स हैं, डब्ल्यूटीओ के प्रेशर्स हैं कि हम अपना जो पूरा फार्मर्स को जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, हमारा जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है, हमारा जो फूड सब्सिडी है, हम उसको कम से कम करें। तो एक तरीके से सरकार जो है वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहती है। इसके लिए भी वो डीबीटी लाने के लिए ज्यादा उत्साहित है। उसको ऐसा लगता है कि इससे वो ग्लोबल जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका जो नुकसान किसानों को होगा, खरीदी बंद होगी, एग्रीकल्चर का जो हमारा सेक्टर है उसमें डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो इन नजरियों से भी ये पूरी जो लार्जर अप्रोचेस हैं उसके कारण से भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डीबीटी एक बहुत सही अप्रोच नहीं होगा। और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के नजरिए से भी अगर हम देखेंगे तो शायद ये एग्रीकल्चर को यानी प्रोडक्शन को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारे जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करने में भी प्रॉब्लम करेगा। तो मुझे लगता है कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी और जो पूरा हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस नजरिए से भी डीबीटी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में जो है वो एक सही पॉलिसी और सही इंटरवेंशन नहीं है। जी। While we are talking about vulnerable groups, one very prominent vulnerable group is pregnant women. Ma'am, NFSA includes maternity benefits, which the NDA government has truncated now from 6,000 rupees to 5,000 rupees. और ये 5,000 rupees भी restricted है only for first birth. So this excludes half of the pregnant women in India. And as of December 2018, only 38 lakh women were supported by this scheme out of 2.7 crore women. इन चेंजेस के पीछे क्या लॉजिक है और इससे प्रेग्नेंट वुमेन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जैसे आपने कहा, आंकड़ों तो आपने क्वेश्चन में ही दे दिया था कि जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में ये लिखा हुआ है कि सभी गर्भवती महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए मातृत्व भत्ता के रूप में दिया जाना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कीम बनाया गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दैट स्कीम इज ओनली फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। तो पहले बच्चा के लिए ही वो सपोर्ट मिलता है और अमाउंट भी 5,000 हो गया है। इसके चलते लाइक यू सेड 50% महिलाएं, एक्चुअली 50 से ज्यादा महिलाएं ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती हैं बिकॉज द बर्थ रेट्स आर हायर। मतलब एक महिला को ऑन एन एवरेज 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। एंड वी डिड सम रिसर्च टू लुक एट हु आर द women who are excluded. The women who are excluded are those who belong to the poorer states disproportionately. यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से ज्यादा महिलाएं एक्सक्लूड हो रही है। एंड अक्रॉस द कंट्री इट्स विमेन फ्रॉम SC एंड ST, दलित आदिवासी समुदाय के महिलाएं हैं जो ज्यादा एक्सक्लूड हो रही हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स में फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट द लॉजिक बिहाइंड दिस एंटाइटलमेंट ऑल्सो। वन is that it is for supporting the mother through this period of pregnancy and lactation. It is also for supporting the child. ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये एंटाइटलमेंट इसलिए आया क्योंकि पहले 6 महीने तक बच्चा का आहार सिर्फ स्तनपान है, और अगर स्तनपान करना है एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक तो महिला को काम पे नहीं जा सकती है, और घर पे बच्चे के साथ अगर रहना है तो उसके लिए इनफॉर्मल सेक्टर में ये मैटरनिटी एंटाइटलमेंट was seen as a support. Because if you're in the formal sector, like I work in a university, there if you have a child, you get paid leave for 6 months, but an agricultural labor, a construction labor woman does not get it. And this support is a right of the child also, and therefore you cannot deny that child, whether it's a second child, third child, fourth child, you're denying that child the right to breastfeeding by not enabling the child's mother to be able to do it. So that is a big problem. And the other problem is, even if you look at it, जो जरूरत के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो लेटर प्रेगनेंसीज में ज्यादा सपोर्ट जरूरत होती है, क्योंकि घर में ऑलरेडी एक और बच्चा भी है खिलाने के लिए,
और फिर नया बच्चा हुआ है, तो सपोर्ट की जरूरत जिस समय ज्यादा होती है उस समय ये दिया नहीं जा रहा है इस स्कीम के तहत. So this is really violating many of the rights of both women and children. It is sad to hear that despite having the scheme in place, it's not reaching where it's intended to. एक आखिरी सवाल आप दोनों से. MG नरेगा ने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है हंगर लेवल्स रिड्यूस करने से by enhancing purchasing power of the common man. और NDA ने नरेगा को भी स्कटल कर दिया है. 11,000 करोड़ ऑफ वेज पेमेंट्स 2 साल से रुकी हुई हैं और स्टेट्स को भी फोर्स किया जा रहा है टू कैप द नंबर ऑफ जॉब्स. इससे कितना बुरा असर पड़ा है इंडियंस पे? मैम, स्टार्टिंग विद यू. Again, like you said, Narega is a very important scheme, and it's extremely important in the current situation that India is in, where we are facing a demand crisis, both as a result of the pandemic, but even before that. And there is that famous statement that the Prime Minister made in the well of the Parliament that NDA is a monument to the failure of the previous government. But we are seeing that in the current context of highest unemployment rates and the distress caused by the lockdown and the follow-up, Narega is turning out to be the savior for many people. However, because the scheme has been diluted over the last few years, like you said, there are pending wages, the MIS has been made so complicated that it's not easy to register your demand and immediately get your work. There is a cap on the number of days of work that can be created. So what we are seeing now is that now we have data which shows that just in these first 6 months of this, less than 6 months of this financial year, already 50% almost of the total Narega budget has been spent in 4 months. Many households have already used up 100 days of their entitlement for jobs, and still there are problems of delays in wage payment and so on. So this, if Narega is to truly play the role that it is supposed to play, which is to give employment for people when it's not available, but it also has this larger role to play in the economy of boosting rural demand, which is extremely important in a situation like the current times where demand is in a deficit, and therefore to even boost growth, we need Narega to work. So although there has been this neglect of the program of the last 4 years, we do see the last few months, ये pandemic के बाद थोड़ा attention दिया जा रहा है, but that's way less than what is actually required. What we have learned in these 4 months is that there is this huge demand for Narega and the response is still slow. Sir, would you like to add? मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पूरा अप्रोच है मनरेगा को, हम एक तरीके से अगेन लाइक पीडीएस मनरेगा को भी आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक सरकार का फोकस इस बात में नहीं है कि रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से रिवाइव किया जाए, क्योंकि केवल ये वेजेस के नजरिए से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके कारण से रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने में, वहां पर लोगों की जो परचेसिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है. और सरकार का बहुत रुचि नहीं है. जिस तरीके के हमारी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उसमें सीधी सी बात यह है कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से कैसे लोगों को निकाल करके अर्बन सेटअप में लेके आया जाए, ताकि जो रूरल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जा सके फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो उस पूरे पर्पस में अगर आप देखेंगे, उस पूरे पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे, तो मनरेगा शायद लोगों को गांव से शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करने देने में सपोर्ट करती है. और एक तरीके से मनरेगा को कमजोर करने का मतलब यह है कि लोगों के लिए डिस्ट्रेस क्रिएट करना, ताकि वो जो है गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो. तो मुझे पहला पॉइंट तो इसमें नजर आता है कि इसके पीछे एक सोच, इसके पीछे एक मंशा काम करती है कि गांव से लोग बाहर निकले. इसके लिए ऐसा कोई सिस्टम फंक्शन नहीं करने देना है जिससे लोग गांव में रुकने के बारे में सोचें, या गांव के रिसोर्सेज या जो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज हैं वो फिर से रिवाइव हो सके. ये पहला पॉइंट मुझे लगता है. दूसरी बात, अगर पॉलिटिकल रीजन से भी अगर हम देखें तो एक बात है कि मनरेगा जो है उसने लोगों की, खासतौर पे मजदूरों की जो एक बार्गेनिंग कैपेसिटी है वेजेस को लेकर के, वो बढ़ाई है. और मुझे लगता है कि हमारा जो प्रेजेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका सीधा इंटरेस्ट इस बात में है कि जो लोकल लेवल पर भी जो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज हैं उनकी ज्यादा कैपेसिटी रहे, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल में रहें और मजदूर बार्गेनिंग कैपेसिटी में ना आए. इसके लिए भी जरूरी है कि मनरेगा को कमजोर किया जाए, क्योंकि मनरेगा में जितने वेजेस मिलते जाएंगे, जितना बेहतर इंप्लीमेंटेशन मनरेगा का होगा, तो लोकल जो भी लैंड ऑनर्स हैं या जो भी ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं
ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं जो लोकल लेवल पर हैं। हम हमेशा आमतौर पर कैपिटलिज्म की बात करते हैं, वो बड़े स्केल पर नेशनल या ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, लेकिन जब हम लोकल लेवल पर बात करते हैं तो वहां की पॉलिटिक्स भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती है, जो ये चाहती है कि सरकार मनरेगा को कमजोर करे ताकि उनके यहाँ पर जो काम करने वाले 5, 10, 15, 25 मजदूर हैं उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी उतनी ना बढ़े और वो लगातार उनके बॉन्डेड लेबर के तौर पर लगातार काम करते रहें। तो ये जो एक तरीके से माइक्रो से लेकर के मैक्रो जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है। जो प्रेजेंट आइडियोलॉजी है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला नजरिया भी जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है। थैंक यू सर। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एंड एनडीए गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रूविंग दिस ट्रू एवरी डे। जो स्कीम्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनका भी इफेक्ट वो स्कटल कर रहे हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स की वो कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, और जब सड़क पे भूखे लोग हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स आर नॉट एबल टू एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स इन प्लेस, क्या सच में विकास कभी अचीव हो पाएगा? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे।